آج تک وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں نہ 1 روپیہ ملا ہے. ہر صبح کو وفاقی حکومت کی نااہلی نالائقی کی وجہ سے نقصان پہنچایا ہے. وزیر اعظم صاحب سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنو, وزیر اعظم ہو کے کام کرو. اگر نہیں کام کرنا ہے تو پھر خود استعفیٰ دے کے گھر جائے اور کسی اور کو یہ کام سونپے. وزیر اعظم کنٹینر سے اتریں اور اپنا کام کریں. اگر ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو استعفیٰ دے کر کسی اور کو موقع دیں. خدشہ ہے کہ وفاقی حکومت کی نااہلی سے کراچی نیو یارک نہ بن جائے. 18ویں ترمیم کا شوشہ توجہ ہٹانے کے لیے چھوڑا گیا, اس کو چھیڑا گیا اور عمران خان کے پاس صرف میئر اسلام آباد کے اختیار بچیں گے. بلاول بھٹو. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس وقت وفاقی حکومت نے یہ شوشہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ وہ توجہ آپ کا ہٹے. اگر اس وقت 18ویں ترمیم اور NFC کا بحث کھلے گا تو پھر ہم وزیر اعظم کے پاس صرف میئر اسلام آباد کے پاورز رہیں گے, پھر ان کو صوبے کو زیادہ وسائل دیں گے. بلاول بھٹو نے ثابت کیا کہ وہ اشرافیہ کے نمائندے ہیں, سخت لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ فارمولا امریکہ سمیت کئی ممالک میں ناکام ہو چکا. عاصم سلیم باجوہ کے ساتھ ٹیم کی طرح کام کریں گے. وزیر اطلاعات شبلی فراز. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, لیکن وہ ہو نہیں سکتا. ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا, اور ایون جو باہر کے ملک ہیں وہ باوجود اپنے وسائل کے ہوتے ہوئے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جس کو کہ ہم ایک ایسا لاک ڈاؤن کریں جس میں کہ جو اجتماعی مقامات ہیں وہاں پہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں, لیکن جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے. فرزند سرداری کی پریس کانفرنس. سندھ حکومت کے خلاف چارج شیٹ. بلاول نے اپنی ناکامیوں کو وفاق کے سر ٹھونکنے کی ناکام کوشش کی. مراد سعید کا رد عمل. سندھ حکومت کو اگر کیش دیا تو وہ منی لانڈرنگ کی نظر ہو جائے گا. شہباز گل. ملک میں کورونا بے قابو. ایک ہی دن میں 47 افراد جاں بحق. تعداد 408 ہو گئی. 17,699 متاثر. سندھ میں 6,675. پنجاب 6,340. خیبر پختونخوا میں 2,799 کیس. 4,351 لوگ صحت مند ہو کر گھروں کو جا چکے. وزیر خارجہ کا سوئٹزرلینڈ کے ہم منصب سے رابطہ. وزیر اعظم کا کورونا پر ارکان قومی اسمبلی کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ. پیر کو ویڈیو لنک اجلاس طلب. عمران خان تحفظات اور شکایات بھی سنیں گے. پاکستان میں کورونا کے حوالے سے حالات بہتر. سمارٹ لاک ڈاؤن کا فائدہ تب ہوگا جب SOPs پر عمل ہوگا. بہت سے ممالک میں پابندیوں میں بتدریج نرمی ہو رہی ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا. پرویز الہی کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار. برے حالات کی وجہ سے مریض جلوس نکالنے پر مجبور ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی. ہکلا سے DI خان موٹر وے پر کام تیزی سے جاری. 292 کلومیٹر طویل سڑک کا 69% کام مکمل. فاصلہ 5 سے کم ہو کر 2.5 گھنٹے رہ جائے گا. چیئرمین CPAC اتھارٹی اور معاون خصوصی عاصم سلیم باجوہ. میاں صاحب کی سرجری کورونا کے باعث ملتوی ہوئی. ڈاکٹرز کے مطابق ہائی رسک مریض ہونے کی وجہ سے احتیاط ضروری ہے. آپ سب رمضان کریم کی خصوصی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں. مریم نواز کا ٹویٹ. سلیم ملک جو ہے انہوں نے کون سا گناہ کر دیا تھا جس کے بیسس پہ یہ وکٹمائزیشن ہو رہا ہے. سری لنکا کا ٹور ختم ہوا تھا ایک, تو انتخاب عالم نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو باسط علی صاحب تھے انہوں نے مجھ سے آ کے کنفیس کیا تھا کہ میں ملوث تھا کرکٹ فکسر بکیز کے ساتھ. عارف علی عباسی کا باسط علی پر بھی فکسنگ میں ملوث ہونے کا الزام.
सलीम मलिक बेकसूर करार, तहकीकात में शेन वॉर्न, टिम मे और मार्क वॉर्ड झूठे साबित हुए। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने फैसले को तस्लीम किया और तीनों क्रिकेटर्स पर पाबंदी लगाई। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी। इंतखाब आलम ने आरिफ अब्बासी के बयान की तस्दीक कर दी। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ने बासित अली के फिक्सिंग एतराफ का जिक्र किया था, सबूत न होने पर रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया। साबिक कोर्ट जिन साहब को भी ये शौक हो ना, चाहे वो आरिफ अब्बासी साहब हो, चाहे स्कीपर हो, चाहे एक्साइजर कोई और भी हो, अगर वो ये चीज़ साबित कर दें कि बासित अली ने कभी ऐसी कोई चीज़ करी हो या ऐसी बात कभी बोली हो दुनिया की किसी भी अदालत में, तो मुझे उसी टाइम पे हैंग कर दिया जाए। फिक्सिंग साबित हो जाए तो लटका दिया जाए। शुएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी में इल्जामात कानूनी जंग में तब्दील। पीसीबी के कानूनी मुशीर का 10 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का नोटिस। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने मारूफ कानूनदान अबूजर सलमान न्याजी की खिदमात ले ली। जो कहा सच है, अदालत में साबित करेंगे। फास्ट बॉलर की गुफ्तगू। शुएब अख्तर मुल्क के बेहतरीन बॉलर और मैच विनर थे। उनके तफस्सुल रिजवी के साथ मामला हल कराने के लिए मदद करने को तैयार हूँ। शाहिद आफरीदी की पेशकश। सिंध गंदम स्कैंडल पर नैब मुतहर्रिक। 4 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में दायर कर दिए। 9 अजला में 4,87,000 टन खुर्द बुर्द की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में इजाफा, आवाम को कमी का पूरा फायदा ना मिल सका। पेट्रोल पर लीवी में 6 रुपए 60 पैसे इजाफा। हुकूमत फी लीटर 45 रुपए 85 पैसे महसूल लेने लगी। दुनिया में कोरोना से निर्ख कम, पाकिस्तान में हाई। महंगाई ने पहले से ज्यादा अफराद की कमर तोड़ कर रख दी। एक माह में दाल मसूर 28, मूंग 23, माश 14, बेसन 8% महंगा। कोरोना से दुनिया भर में हलाकतें 2,37,000 से तजावुज। अमरीका में 1,065, बरतानिया 739, स्पेन 281, इटली 269, फ्रांस में मजीद 218 हलाक। भारत में अब तक 1,154 आलमी इदारा सेहत चीन जाकर कोरोना के फैलाव की तहकीकात करने का ख्वाहिशमंद। उम्मीद है बीजिंग तहकीकात में शामिल होने की दावत देगा। WHO। इस्लामाबाद और झंग में बादल बरस पड़े। डेरा बुगटी में भी रिमझिम। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बाराने रहमत की तवक्को। मई के पहले और तीसरे हफ्ते में ज्यादा बारिशों की पेशगोई। दूसरे हफ्ते से दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सचार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंध को वबा के दौरान वफाक से 1 रुपया नहीं मिला। मौजूदा लॉकडाउन पंजाब और के वज़राए आला की तजवीज़ पर लगाया गया। क्या यही वो एलीट है जिसकी इमरान खान बात कर रहे थे? उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कंटेनर से उतरें और अपना काम करें। अगर काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि 18वीं तरमीम का शोशा तवज्जो हटाने के लिए छोड़ा गया। अगर इसको छेड़ा गया तो सूबों को मजीद इख्तियारात देना पड़ेंगे। आज तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें ना 1 रुपया मिला है अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना हमें 1 रुपया मिला है अपना हेल्थ केयर का कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना हमें 1 रुपया मिला है रिलीफ ऑपरेशंस के लिए, ना हमें 1 रुपया मिला है मईशत को संभालने के लिए। आपने पूरा जोर तो सूबाई हुकूमत पे डाल दिया है। वफाक क्या काम करने को तैयार है? हर सूबा को वफाकी हुकूमत की नाअहली नालायकी की वजह से नुकसान पहुंचाया है। हमारा वजीर आज़म इस किस्म का क्राइसिस के दौरान दिन में कोई बयान देता है, कोई और बयान देता है। ये जो लेटेस्ट लॉकडाउन का एक्सटेंशन है, पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत के तजवीज़ पे लॉकडाउन एक्सटेंड किया है।
किया गया। लॉकडाउन के ऐलान 9 मई तक वफाकी वजीर ने किया, तो क्या ये वो एलीट्स है जिन्होंने ये लॉकडाउन हम पे मुसल्लत किया? कौन हमारा वजीर आज़म को समझाएगा कि वो आप कंटेनर पे नहीं है, इस मुल्क का वजीर आज़म है और हम इस मुल्क के सबसे मुश्किल नेशनल क्राइसिस के मुकाबला कर रहे हैं। कंटेनर से उतरो और अपना काम करो। वजीर आज़म साहब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वजीर आज़म बनो, वजीर आज़म होके काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफ़ा दे के घर जाए और किसी और को ये काम सौंपे। 18वीं तरमीम को कोई ख़तरा नहीं है। इस वक्त वफाकी हुकूमत ने ये शोशा इसलिए डाला है ताकि वो तवज्जो आपका हटे, मेरा हटे और हम सब इस ट्रक की पत्ती के पीछे पड़े। इस वक्त अगर कोई 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड का कॉन्वर्सेशन छेड़ेगा तो फिर उनको सुबह को ज़्यादा वसाइल देना पड़ेगा। वफाकी हुकूमत खुद कह रहा है कि हम तो इस वबा के मुकाबले में कुछ नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमत खुद करे तो उनके लिए उनके पास हम क्यों पैसा छोड़ें, उनके पास हम पावर भी क्यों छोड़ें? अगर इस वक्त 18वीं तरमीम और NFC का बहस खुलेगा तो फिर हम वज़ीर आज़म के पास सिर्फ मेयर। इसी पर शिबली फराज ये कहते हैं कि बिलावल ने साबित कर दिया कि वो अशराफिया के नुमाइंदे हैं। शहबाज गिल ने कहा कि पर्ची पर चेयरमैन बनने वाले को 18वीं तरमीम का मतलब समझाना होगा। मुराद सईद का कहना है कि फरजंद जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। बिलावल भुट्टो के इल्जामात पर वफाकी हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अवाम को गुमराह करने की साजिश करार। वफाकी वजीर इत्तलात ने बिलावल भुट्टो को अशराफिया का नुमाइंदा करार दे दिया। शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध हुकूमत की नाअहली विफाक की ढूंढी कोशिश की। कोरोना पर सियासत करने वालों को कौम मुआफ नहीं करेगी। शिबली फराज का कहना था कि एहसास कैश प्रोग्राम के तहत 144 अरब रुपए मुस्तहिक और नादार तबकात में तकसीम किए जा रहे हैं। बिलावल साहब की लाइल्मी पर अफसोस ही किया जा सकता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा कि सिंध हुकूमत को अगर कैश दिया तो वो मनी लॉन्ड्रिंग की नजर हो जाएगा। बिलावल जरदारी साहब हैं, उन्होंने एक नकम्मी बहू जिसको कोई काम नहीं आता लेकिन उसने रोना धोना करना है, पर्ची के साथ हादसाती तौर पर चेयरमैन बने हैं। 18वीं तरमीम के बाद इनको ये पता नहीं है कि ये तमाम बजट इनको मिलता है, हेल्थ सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने किसी को क्या एक पैनी भी दी है? मोहतरम मुराद अली शाह साहब जिनका अंग अंग करप्शन में लिपटा हुआ है। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, कोई फरजंदे सरदारी को बताए सेहत सूबाई मामला है जिसे संभालने में सिंध हुकूमत शर्मनाक हद तक नाकाम है। सिंध के वजीर आला सरदारी और इब्ने सरदारी की नाजायज दौलत बचाने में मसरूफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज ने कहा है कि मुल्क सख्त लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये फार्मूला अमरीका समेत कई ममालिक में नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत को भी एहसास हुआ कि लॉकडाउन को इंतहा तक नहीं ले जा सकते। 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत सिर्फ पॉलिसी गाइडलाइन दे सकती है। प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो यही चाहते थे कि अगर लॉकडाउन जिस तरह के कुछ लोगों का ख्याल था कि इसको कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं सकता, हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। और इवन जो बाहर के मुल्क हैं वो बावजूद अपने वसाइल के होते हुए वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह रहे हैं जिसको कि हम एक ऐसा लॉकडाउन करें जिसमें कि जो इज्तिमाई मकामात हैं वहाँ पे लोग इकट्ठे ना हो सकें, लेकिन जो मईशत का पहिया है वो भी चलता रहे। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रीज़ का जो सब्जेक्ट है, ये सारे डिवॉल्व सब्जेक्ट हैं। सेहत का सब्जेक्ट डिवॉल्व है, लेकिन हमारी जो फेडरल हुकूमत है हम तो एक पॉलिसी गाइडलाइन दे सकते हैं और हमारी कोशिश यही है कि हमने इसको बैलेंस करना है। किस तरह अगर एक तरीका तो ये है कि हम बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें और घरों में बैठ जाएं। आप खुद बताएं कि ये वाला जो फार्मूला है ये फेल हो गया है। न सिर्फ पाकिस्तान में, कई और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी ये फेल हो गया है। तो हमारी दरख्वास्त हमेशा रही है और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत इस सिलसिले में उनको ये हो गया है, इवॉल्विंग सिचुएशन है, उसमें सबको एहसास हो गया है कि हम इसको एक्सट्रीम्स पे ले जा ही नहीं सकते। चाहे हमारी मुखालिफतें हों, हमारी सियासी डिविजन्स हों, लेकिन जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक़ है, हमारी हुकूमत का ये मानना है और उसकी फर्म बिलीफ है कि हमने सबको साथ लेके चलना है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button.
Keep watching Dunia News.